شروع کیا ہے. جب میں ہر دفعہ بھی آپ کو کلام سے رہوں گا تو ایسے لگے گا کہ جیسے ایک ہی کلام ہے. میں ہر سنڈے ایک ہی میں بات آپ سے کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک ایسی عادت ہے اگر آپ اسے سنتے رہیں گے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ جو ہے نا آہستہ سے بڑھتی جائے گی اور یہ آگ لگ جائے گی. اور یہ مضمون ہے پانی کا بپتسمہ اور روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہم کیسے پائیں. سوال ہے آپ کی زندگیوں میں جو کلیسیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کٹ کے بھر جائے، کٹ کے آپ کو سمجھ آئے کہ پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ ہم کیسے پائیں. اگر آپ جب کلیسیا کے اندر جب خدمت گزاری کے لیے آپ چلتے ہیں تو آپ سے کوئی سوال کرے تو پانی کا بپتسمہ ہم کیسے لیں، تو آپ کیا آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے. ایسے ہیں اگر کوئی کہے جی روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہم کیسے پائیں، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے. کوئی آپ کو جوڑ نہ کرنے پائے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو پوری طور پر آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. تھوڑے سے بھی آپ ہوں گے تو جب اس آگ کو آپ لے لیں گے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر 10 ہو اور ان میں سے ایک بھی نہ ہو جو رہا ہوا معلوم ہو، وہ سب روح القدس اور آگ سے معمول ہو. ہاللیلویہ. اور میں بہت جلد دیکھوں گا بھی اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور یہ آگ جو ہے بڑھتی جائے. تو کلام مقدس میں سے پارٹ 2 یہ مضمون کا جو حصہ ہے، پہلا حصہ میں بیان کر چکا ہوں، آج پارٹ 2 ہے. اور اسے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ روح القدس کی تحریک ہے. تھموتھیوس اور اس کا 3 باب اور 17 آیت کے اندر میں آپ کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھوں گا. لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، الزام، اصلاح، راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ. ہاللیلویہ. وہ کہتا بالکل تیار ہو جاؤ. کون تیار ہو جائے؟ کہتا تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے وہ بالکل تیار ہو جائے. کیا کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ یعنی کلام کے جتنے حصے ہیں وہ خدا کا الہام ہے، خدا کی طرف سے، خدا کی روح سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اور کہتا ہے تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اسے ہمیں جاننا ہے. یاد رکھیے کہ بائبل سادگی سے میں کہتا ہوں کہ واضح کرتی ہے کہ فقط یہ اعلیٰ ترین اندیکھی قوت ہے جس کے ذریعے سے خدا اور حقیقت اور انسان کے ذہن اور روح پر یہ اختیار رکھتا ہے. ذہن اور روح پر اختیار رکھتا ہے، ان سے گفتگو کرتا اور انہیں ہدایت دیتا ہے، جس کے وسیلے سے بائبل لکھی گئی. اور یہ اندیکھی قوت روح القدس ہے، یعنی یہ خدا کا اپنا روح ہے. روح القدس کیا ہے؟ خدا کا اپنا روح ہے. خدا کا کہتے ہو کہ اندر کا یہ سانس ہے، جو خدا کے اندر سانس ہے. اور جب پیدائش میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا ہے. یعنی خدا کا روح وہ جو پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا وہ اندر کا سانس ہے. اس کا تعلق میں کہتا ہوں کہ برائے راست ہماری روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ اس روح کو جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اس میں سے ایک کہتا ہوں کہ قطرہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر بانٹا گیا تو آج ایسے سانس لے رہے ہیں. اس کا مطلب خدا کا روح ہمارے روح کے ساتھ اس میں سے لیا گیا، اس میں سے میں بلایا گیا. دوسرے لفظوں میں خدا کا روح القدس اندیکھی اور انجانی قوت ہے جس نے ان سب کی رہنمائی کی جنہوں نے کلام مقدس کو لکھا، تحریر کیا. آئیے ہم کلام مقدس میں سے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 20 باب 19 سے 23 تک. لکھا کلام میں پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، اور یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تم کو
भेजता हूँ। और ये कहकर प्रभु का और उनसे कहा, रूह कुद्दुस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से सबसे पहले कहा कि तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। मैं भी खुदा का खादम होता हूँ, आपसे कहता हूँ कि तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। तो सलामती देने के बाद फिर खुदा यीशु मसीह ने, मैं समझता हूँ कि जब खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी सलामती हो, तो शागिर्दों ने भी कहा होगा आपकी भी सलामती हो। तो क्या हुआ, रूह से जुड़ गई। और कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने ये कहकर उन पर क्या फूंका, रूह कुद्दुस फूंका, और कहने लगे कि रूह कुद्दुस लो। यानी खुदा यीशु मसीह का ये हुक्म है कि हमें क्या करना है, रूह कुद्दुस हमें लेना है, और लेने के बाद ही हमें इख्तियार मिलता है। पानी के बपतिस्मे के बाद आपके पास इख्तियार नहीं, मेरे पास इख्तियार नहीं है। हाँ, ये जरूर इख्तियार है कि पानी का बपतिस्मा लेने के बाद मेरे गुनाह माफ हो गए। हालेलुया। मेरी बीमारियां गई, मेरी मुश्किलात गई, मेरे हालात बदल गए। खुदा ने मुझे नई जिंदगी दे दी, मुझे निजात का तजर्बा दिया। हम निजात पा जाते हैं, हम बच जाते हैं, हालात चेंज हो जाते हैं पानी का बपतिस्मा लेने से। लेकिन इख्तियार नहीं मिलता जो हम दूसरों को जिंदगी को बचा सके, जो हम दूसरों की निजात का हम बाइस नहीं बन सकते जब तक हमारे पास इख्तियार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा खुदा यीशु मसीह ने कि जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो। यानी आपके पास फिर इख्तियार आता है कि आप किसी के लिए दुआ कर सकते हो, आप अपने साथी के लिए दुआ कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने घर के लाने के लिए, कलीसिया के लिए, बीमारों के लिए, मुकद्दसों के लिए आप दुआ कर सकते हो। आप अपने मुल्क के लिए कर सकते हो, अपने शहरों के लिए कर सकते हो, गलियों कीचों के लिए। जब आप दुआ करते हो तो फिर आपके पास क्या है, इख्तियार है। यानी किसका, दुआ करने का इख्तियार है। याद रखिए कि रात बाजों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते हैं, और मुल्क भी सरफराजी तब पाते हैं। और जब आप दुआ करें तो आपको रास्तबाज कैसे बनेंगे, जब हम खुदा यीशु मसीह की उस रास्तबाजी को हम पूरा करेंगे। तो रास्तबाजी तब तक मुकम्मल और पूरी नहीं होती जब तक हम रूह कुद्दुस और आग का बपतिस्मा नहीं पाते, तब तक वो इख्तियार हमारी जिंदगियों में मुंतकिल नहीं होता। और खुदा यीशु मसीह ने किया। याद रखिए कि खुदा यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को 50 दिन तक ज़ाहिर होते रहे, और 50 दिन में एक ही कलाम था उनके लिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं सिलसिला जारी रहेगा कि मैं एक ही बात कहूँगा कि रूह कुद्दुस और आग का बपतिस्मा। और खुदा यीशु मसीह यही 50 दिनों से अपने शागिर्दों को यही कहते रहे, और रूह कुद्दुस लो। तो उन्होंने कहा कि रूह कुद्दुस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखेंगे। और यही, और रूह कुद्दुस पाने के बाद इख्तियार उनकी जिंदगियों के अंदर मुंतकिल हो गया। अब वो गुनाहों की माफी के लिए लोगों के लिए बढ़ सकते थे, दुआ कर सकते थे उनके गुनाहों के लिए। जब वो इकरार करते थे और कहते थे, इकरार करके जब हम देखते हैं कि किसी के साथ हम इकरार करते हैं कि मैंने ये गलती की, मेरे लिए दुआ करो, मैं इन मुश्किल में फंस गया, चूंकि मैंने क्या किया, मुझसे भूल हो गई, मेरे लिए दुआ करो। तो क्या करते हैं, जब कोई इकरार करता है तो फिर खुदा के खादिम क्या करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। अब जब दुआ करते हैं तो क्या होती है, गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, और जब माफ़ी हो जाती है तो फिर शिफा भी हो जाती है। ये क्या, जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया है। याद रखिए, पहले रूह कुद्दुस और आग, और फिर गुनाह पर इख्तियार। पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही की सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। पहले ढूंढो इख्तियार, और फिर आपको चीजें भी आपकी जरूरत की आपको मिलती जाएंगी। जब इख्तियार नहीं है तो फिर चीजें भी नहीं है। रूह कुद्दुस और आग का बपतिस्मा, मैं बताना चाहता हूं कि पानी के बपतिस्मे से पहले भी हो सकता है।
हालेलुया। कुछ लोगों को मेरे तजर्बे में आया कि उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था, लेकिन वो खुदावंद के साथ इतना जुड़ गए, आंसुओं के साथ, सिजकियों के साथ, दुआ में, कलाम में गहरे हो गए। और क्या हुआ कि उन्होंने बाबुल का बपतिस्मा पहले पा लिया और बाद में उनको पानी का बपतिस्मा दिया गया है। कलाम मुकद्दस में से हम इस बात पर गौर करेंगे और साबित भी करेंगे कि ये कैसे आज क्या मुमकिन हो सकता है। कल अगर हुआ तो क्या आज हो सकता है। यीशु मसीह कल और आज बक़यामत तक यकसा है। हालेलुया। इबाल और उसके 10 बाब और 44 आयत के अंदर पतरस और कर्नेलियस, जो लिखा है कलाम में कि जब पतरस ने कर्नेलियस और उसके घराने को कलाम सुनाया तो रूह कुद्दूस सफर पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मकबूल ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्दूस की बख्शिश जारी है। आपने सुना और आपने देखो इस तजर्बे के अंदर कि क्या हुआ कि जब पतरस ने कर्नेलियस के घर के अंदर उनके घराने के लिए दुआ की तो कलाम सब प्रूफ करता है कि रूह कुद्दूस उन पर नाज़िल हुआ। और कलाम में लिखा है कि वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे और कहने लगे, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ कि गैर कौम है तो मसीह भी नहीं है, ठीक है, और इस्राएली भी नहीं है, और ये गैर कौम कर्नेलियस का घराना जो यहूदी भी नहीं है। और क्या हुआ कि रूह कुद्दूस की बख्शिश जो है इन पर हुई। और हमने देखा कि वो कहने लगे कि ये तो तरह तरह की ज़बानें बोल रहे जैसे हम दुआ करते हैं। बोले जैसे पतरस दुआ कर रहे हैं, जैसे पतरस के साथी दुआ कर रहे हैं, जैसे शागिर्द दुआ कर रहे हैं, जितने लोग वो रूह कुद्दूस और आत्मा दुआ कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तो हमारी तरह दुआ कर रहे हैं। याद रखिए, तब तक बाकुर का बपतिस्मा गैर ज़बानों के साथ नहीं होता जब तक आप उनको करते हुए नहीं सुनते। क्या किया उन्होंने? पतरस को और उनके शागिर्दों को गैर ज़बानों में दुआएं करते हुए सुना। हालेलुया। तो इसलिए ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब कोई रूह कुद्दूस और आग में दुआ करता है तो जब वो लफ्ज़, वो कलाम जो वो आग में बोला जा रहा है आप नहीं सुनते, आप नहीं रिसीव करते तो ब्लेसिंग नहीं आती। आपने देखा कि पतरस और उसके जो शागिर्द हैं वो रूह कुद्दूस और आग के साथ गैर ज़बानों में जब दुआ कर रहे थे तो वो नामक उन्होंने सुना और सुनकर उन्होंने शक भी नहीं किया बल्कि ईमान में मजबूत हो गए। और लिखा कलाम के मुताबिक कि उन्होंने तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। और पतरस ने क्या कि हैरान हो गए। और पतरस ने कहा क्या कोई पानी से रोक सकता है? क्या लगा क्या होने ना कोई पानी का बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? इसके बदले 2 बपतिस्मे अलग हो गए। क्या कि अगर पानी का बपतिस्मा पहले लिया जाए तो बाद में रूह कुद्दूस और आग का बपतिस्मा हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने पानी का नहीं लिया हुआ और इन्होंने पहले कौन सा ले लिया? रूह कुद्दूस और आग का बपतिस्मा हुआ। क्या लेकिन भला कौन की गल है? अब कौन इन्हें पानी से रोक सकता है? याद रखिए, रोकते हैं हालात, रोकते हैं गुर्बत, तंगी, बदहाली, गुनाह बपतिस्मा लेने से रोकते हैं। जो जिंदगी के अंदर चलते हैं उन्होंने छड़ना नहीं मांग रहे, वो ऐसे काम है जिनको वो छोड़ना नहीं मांगते। इसलिए रूह कुद्दूस और आग का बपतिस्मा नहीं होता। और रूह कुद्दूस और आग का बपतिस्मा आपका वेट करता है, इंतजार करता है कि कब आप इकरार करोगे। यहाँ देखिए कर्नेलियस और उसके घराने ने एडमिट किया, इकरार किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कर्नेलियस का घराना जो खुदा से डरता था और जो खुदा के हदियाजात वो बाकायदगी से देता था और खुदा से दुआएं करता था। कलाम में लिखा कि दिन रात वो और उसका घराना, लिखा है वो और उसका घराना दुआ करते थे। तो लिखा है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तब तीसरे पहर के करीब खुदावन का फरिश्ता कर्नेलियस के पास आया और उसे रोया में दिखाई दिया और उसने कहा कर्नेलियस, कर्नेलियस। और उसने कहा ऐ खुदावन क्या है? मैं सुनता हूँ। और कहा कि देख कर्नेलियस, तेरी दुआएं
तेरी मना जाते सब मेरे हुजूर में पहुंच चुकी हैं, शुक्रगुजारी के लिए। हालेलुया। फिर जब तक पहुंचती नहीं तब तक क्या होता है, ये रूह कुदस और आग का बपतिस्मा भी नहीं पाया जा सकता। और फिर हम कलाम में देखते हैं कि वो पहुंच गए, वो उसकी दुआएं पाक प्यालों में, वो प्याला मुकद्दसों की दुआएं पाक प्यालों में जमा होती हैं, वो दुआएं भर गई, लबरेज हो गया। कहता मेरा प्याला लबरेज होता है, और जब लबरेज हो गया तो वो प्याला शुरू करता है। वो ही दुआएं हैं, जब वो प्याला भर जाएगा वो आपके लिए है, और जब वो लबरेज ऊपर से गिरना शुरू हो जाएगा फिर वो लोगों के लिए है। इसराइल के अंदर अंगूरों की बेलें जो है वो लोगों के घरों में लगी होती, बहुत अंगूर लगते थे, और जो अंदर की तरफ अंगूर थे वो घर वालों के लिए थे, और जो गली में अंगूर लगे होते थे वो लोगों के लिए थे। वो लोग क्या करते थे, तोड़ते हुए उनको मना नहीं करते, इतने डंडा लाके उनके पीछे भागते हैं, वो नहीं, उनके लिए क्या करते थे, तोड़ो ये आपका हक है। इसलिए वो जो लबरेज हो रही दुआएं, अगर लबरेज नहीं हो रही तो समझो कि फिर आपके पास इख्तियार नहीं है, आपको चाहिए कि आप लबरेज हो। कलाम मुकद्दस वाज़िया करता है कि कोई पानी से रोक सकता है जिन्होंने हमारी तरह और रूह कुदस और आग पाया? कहना इन्होंने नहीं पाया, क्योंकि क्या हुआ, उनको गैर ज़बाने में दुआ करते हुए पतरस उन्होंने भी देखा, उन्होंने उनको बोलते हुए देखा, और उन्होंने भी उनको बोलते हुए देखा। इसलिए रूह से रूह टकरा गई और रूह कुदस और आग का बपतिस्मा हो गया, और उसने हुक्म दिया कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि चंद रोज और हमारे साथ रहे। हालेलुया। जब बपतिस्मा पा लिया तो उन्होंने कहा चंद दिन और साढ़े में रहे ताकि और हमारी तरक्की। याद रखिए कि जब रूह कुदस और आग का बपतिस्मा हो गए तो फिर रोज, चंद रोज नहीं, और खूब दुआ करें ताकि आपके अंदर मसा 30-60 गुना से भी ऊपर चला जाए। और जब आपको बपतिस्मा हो जाए तो उसका बाप ने बंद कर दिया तो फिर ऐसे ही है, वो ब्लेसिंग भी रुक जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा दुआ करें ताकि वो आग भी आपके अंदर बढ़ती जाए। आपने सुना कि कर्नेलियस और उसके साथ वालों ने रूह कुदस और आग का बपतिस्मा उनको उन्होंने पाया पानी का, और दोनों मैं बताता हूँ कि ये दोनों अलग हैं लेकिन बरकत उनकी एक है, ब्लेसिंग एक है, मजा एक है, हजूरी एक है, उनकी ताकत पावर एक है। और जब तक मुकम्मल तब तक होती जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसी तरह इस रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। और जब तक ये रास्तबाजी मुकम्मल तभी होती है जब आप रूह कुदस और आग का बपतिस्मा गैर ज़बानों के साथ नहीं पाते, तब तक आप मुकम्मल नहीं। जब मैं खुदा की बंदी मेरी मिसेज रुबीना पिछले दिनों में एक मिसाल दे रही थी कि सेब जो है अगर मैं खाऊं तो क्या आप बता सकते हो कि ये मीठा है या खट्टा है? तो मैं भी बता सकता हूँ कि जब मैं अगर कहूँ कि मैं सेब खा रहा हूँ तो आप भी उसको नहीं बता सकते कि ये मीठा है या खट्टा है। जब तक कोई उसे ना खाए तब तक उस दूसरे को नहीं पता चल सकता कि मीठा है या तुरश है। इसी तरह रूह कुदस और आग का बपतिस्मा भी ऐसे ही है, जब तक वो इसको पा न ले और उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसकी मिठास क्या है, ये कितना ज़्यादा मीठा है, ये शहद के छत्ते से भी ज़्यादा मीठा है, जो 1000 सिक्कों से भी ज़्यादा बेहतर बातें कहता है। ये ऐसी है, इसकी ऐसी ही गहराई है, एक बलाहट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने लोग इस मिठास को पाना चाहते हैं। एक सवाल है कि कितने लोग इस मिठास को पाना चाहते हैं। हम सब उनके लिए आज दुआ करेंगे। जैसे यीशु नासरी ने दुआ की तो रूह कुदस नाज़िल हुआ, वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगी। और जैसे रूह कुदस जो है मुकद्दसों की शिफायत करता है, रूह कुदस पाक की शिफायत करता है मुकद्दसों की। याद रखिए अगर आप मुकद्दस नहीं है तो फिर वो कभी भी आपकी शिफायत नहीं करेगा, आप रुड़ जाओगे। इसलिए उनकी ही करेगा शिफायत जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। कर्नेलियस के घराने के लिए जब पतरस ने उन पर हाथ रखा तो कलाम में लिखा कि रूह कुदस से नाज़िल हुआ और रूह कुदस और आग में दुआ करने लगे। जब
पौलुस ने हाथ रखा अपुल्लोस और उसके साथियों पर और रूह कुदस नाज़िल हुआ और वो भी गैर ज़बानों में दुआ करने लगे। और जब पतरस ने अपना हाथ पूरी जमात पर बढ़ाया जो 120 की जमात थी, और अमाल उसके 2 बाब में लिखा है कि 120 की जमात पर जब हाथ बढ़ाया तो लिखा है रूह कुदस फटती हुई ज़बानों पर उन पर नाज़िल हुआ और उन सब पर जो 120 थी उन पर ठहर गया और वो रूह कुदस से भर गए और रूह कुदस और आग में दुआ करने लगे। हालेलुया। आज सब आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आज ऐसे ही जाने कि जैसे आज ये जमात है 120 की जमात है, और मैं चाहूँगा कि सब जितने रूह कुदस और आग से बपतिस्मा जिन्होंने पाया है आज वो फटती हुई ज़बानों में दुआ करेंगे, और जो पाना चाहते हैं रूह कुदस और आग में, मैं कहूँगा थोड़ा सा सेंटर प्लेस उनको दे दें और हम चाहेंगे कि जो पाना चाहते हैं वो सेंटर में रहे और साइडों पे वो जो रूह कुदस और आग से ममूर है हम सब मिलकर आज याद को आज ताज़ा करेंगे कि आज ऐसे ही समय बन जाए कि जैसे पेंतिकोस्त के रोज़ वो फटती हुई ज़बानें ज़ाहिर हुए और हर एक पर ठहर के। मेरी दुआ है कि सब जितने आज हैं जो ममूर हैं वो खुदा की बादशाह में दाखिल हो जाए फटती ज़बानों में, और जो ममूर होना चाहिए हम उनके लिए वैसी ही आग कायम कर दें जैसी पतरस ने और उसके साथियों ने वो आग लगा दी और सारा घराना जो है रूह कुदस और आग से ममूर हो गया। हम ऐसी ही आज मांगे कि जैसे पौलुस ने दुआ की और अपुल्लोस उसके साथी सब रूह कुदस और आग से भर गए और गैर ज़बानों में दुआ करने लगे। मैं खुदा के खादम से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए और हम एक रूह से और मसा से भरा हुआ एक गीत गाएंगे, और उसी के दौरान हम सब अपने हाथ एक याद रखिए किसी का भी हाथ नीचे ना हो, ना हाथ जुड़े हो, ना हाथ बगल के अंदर हो, और अपने हाथों को खुदा के हाथों में देना है। किसके हाथ में? कह रहा खुदावन मैं अपने हाथों को तेरे हाथों में दिए देता हूँ, दिए देती हूँ, और आज तो मुझे रोल को आग से भर। मैं अगर ज़बानों में अगर दुआ करती हूँ तो इसको दुगना कर दे, अगर नहीं है तो फिर आज तो मुझे ममूर कर दे। मैं उसे बिना से कहूँगी कि वो पीछे वो बेटी आगे आगे आ जाए हमारे दरमियान में। खुदा के साथ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। शाबारा बारा 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 बारा। सब हाथ बुलंद कीजिएगा, फिर आप देखिए उसकी कुदरत को देखिए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। आप चाहे दायरा बंद कर दे पीछे से तक बोल कर नीचे ना हो। अगर आज पाना चाहता है मेमोरी तो अपने हाथों को बुलंद कीजिए। आप पाना चाहते हैं, आप उसको चमक करना चाहते हैं, आप उस लेवल को जारी करना चाहते हैं, उसको सामने जगह देना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि मेरी ज़ुबान फटती ज़बानें पाए तो आज बुलंद हो जाए।
मजदूरी आ रही है, मजदूरी आ रही है, शिफाएं आ रही है, आपके रोग मिट रहे हैं,
अब अपने प्यारों के लिए दुआ करो जो घरों के अंदर है, उनके लिए दुआ करो जो बिस्तरों पर है, उनके लिए दुआ करो जो गलियों के अंदर है, उनके लिए दुआ करो जो मोड़ों पर है, उनके लिए दुआ करो जो सोए हुए हैं। उनसे कहा जागो, मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूँ कि तू जाग जाग, उनको जगाओ जो सफर में उनके लिए दुआ करो, जो कारोबार बिजनेस में है उनके लिए दुआ करो। अरे जागो और दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। हालेलुया खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा मुकद्दस पाक खुदा, हम ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। अपने हाथों को लहराएं, कह दीजिए यीशु मैं आज से मैं अपने दोनों हाथों को तेरे हाथों में दिए देता हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, अब अगर हाथ दिया तो नीचे नहीं खींचना, नीचे नहीं खींचना, अभी नहीं खींचना। कह दो मैं रख ले मेरे हाथों को अपने हाथ पे, और इस बात के लिए जोरदार ताली भी देंगे। Praise God.